ईक्ष ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा अर्हणम् उपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा निगणनृपा वर्यसङ्कुलेन्तः तदसि युधिष्ठिराजसूय एषाम् अर्हनमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा. Translation. At the Rajsuya Yagya sacrifice performed by Maharaj Yudhishthir, there was the greatest assembly of all the elite men of the world, the royal and the learned orders, and in that great assembly, Lord Krishna was worshipped by one and all as the most exalted personality of Godhead. This happened during my presence, and I remembered the incident in order to keep my mind upon the Lord. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read the big purport? I can read, Prabhuji. Yes, please. After gaining victory in the battle of Kurukshetra, Maharaj Yudhishthir, the emperor of the world, performed the Rajsuya sacrificial ceremony. The emperor in those days, upon his ascendance to the throne, would send a challenge horse all over the world to declare his supremacy, and any ruling prince or king was at liberty to accept the challenge and express his tacit willingness either to obey or to disobey the supremacy of the particular emperor. One who accepted the challenge had to fight with the emperor and establish his own supremacy by victory. The defeated king would have to sacrifice his life, making a place for another king or ruler. So Maharaj Yudhishthir also dispatched such challenging horses all over the world, and every ruling prince and king all over the world accepted Maharaja Yudhishthir's leadership as the emperor of the world. And after this, all rulers of the world under the regime of Maharaja Yudhishthir were invited to participate in the great sacrificial ceremony of Ratsaya. Such performances required hundreds of millions of dollars, and it was not an easy job for a petty king. Such a sacrificial ceremony, being too expensive and also difficult to perform under present circumstances, is now impossible in this age of Kali. Nor can anyone secure the required expert priesthood to take charge of the ceremony. So, after being invited, all the kings and great learned sages of the world assembled in the capital of Maharaja Yudhishthir. The learned society, including the great philosophers, religionists, physicians, scientists, and all great sages, were invited. That is to say, the Brahmanas and the Kshatriyas were the topmost leading men in society, and they were all invited to participate in the assembly. The Vaishyas and Shudras were unimportant elements in society, and they are not mentioned herein. Due to the change of social activities in the modern age, the importance of men has also changed in terms of occupational positions. So, in that great assembly, Lord Shri Krishna was the cynosure of neighboring eyes. Everyone wanted to see Lord Krishna, and everyone wanted to pay his humble respects to the Lord. Bhishma Dev remembered all this and was glad that his worshipful Lord, the personality of Godhead, was present before him in his actual formal presence. So meditate. So to meditate on the Supreme Lord is to meditate on the activities, form, pastimes, name, and fame of the Lord. That is easier than what is imagined as meditation or the impersonal feature of the Supreme. In the Bhagavad Gita, it is clearly stated that to meditate upon the impersonal feature of the Supreme is very difficult. It is practically no meditation or simply a waste of time because very seldom is the desired result obtained.
The devotees, however, meditate upon the Lord's factual form and pastimes, and therefore the Lord is easily approachable by the devotees. This is also stated in the Bhagavad Gita 12.9. The Lord is non different from his transcendental activities. It is indicated also in this shlok that Lord Sri Krishna, while actually present before human society, especially in connection with the Battle of Kurukshetra, was accepted as the great personality of the time, although he might not have been recognized as the supreme personality of Godhead. The propaganda that a very great man is worshipped as God after his death is misleading, because a man after his death cannot be made into God, nor can the personality of God be a human being, even when he is personally present. Both ideas are misconceptions. The idea of anthropomorphism cannot be applicable in the case of Lord Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Again, another very, very beautiful shloka by Bhishma Dev. Now, what he's meditating on, he wants to keep his mind on that pastime of the Lord, जो कि राजसूय यज्ञ परफॉर्म किया था जब युधिष्ठिर महाराज ने, उस पास टाइम को, उस पास टाइम पे भीष्म पितामह मेडिटेट कर रहे हैं। और एंड व्हाट ही इज सेइंग उस ग्रेट असेंबली में बहुत सारे सभी एलीट मैन ऑफ द वर्ल्ड, रॉयल लर्न्ड ऑर्डर्स और लॉर्ड श्री कृष्णा, वो सब थे वहां पर, और वो सब किसकी, श्री कृष्णा की पूजा कर रहे थे। और दिस हैपेंड ड्यूरिंग माय प्रेजेंस। इजंट इट बिविल्डरिंग? उनकी प्रेजेंस में कैसे हो सकता है राजसूय यज्ञ? जबकि प्रभुपाद ने परपोर्ट यहीं से स्टार्ट किया, आफ्टर गेनिंग द विक्ट्री इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की बैटल के बाद तो 10वें दिन ही ये तो भीष्म पितामह बाणों की शैया पे पड़े थे, और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि दिस हैपेंड ड्यूरिंग ड्यूरिंग माय प्रेजेंस। इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। ठीक है, क्योंकि हम जस्ट पढ़ते ही रहते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, कहाँ फ्लो क्या जा रहा है। बट एक्चुअली, तो इससे जो मैंने लेक्चर जितना मैंने सुना है, और उसमें उन्होंने यही बोला है कि ये राजसूय यज्ञ जिसकी बात भीष्म पितामह कर रहे हैं, वो एक पहले हुआ होगा। और एक्चुअली ये महाभारत जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें हाँ तो आपका, खेलो ना, अभी तो खत्म हो जाएगा सेशन। तो वो अश्वमेध यज्ञ किया था, राइट आफ्टर द बैटल। तो बट प्रभुपाद ने यहाँ पर लिखा है, यहाँ से स्टार्ट किया है, तो आई डोंट नो कि हाउ इट हैपेंड। बट द पॉइंट हियर इज कि वो 100% राजसूय यज्ञ एक पहले भी हुआ था। अब ये वाला उसके बाद भी हुआ तो आई एम नॉट श्योर। बट उस राजसूय यज्ञ में जिसमें भीष्म पितामह खुद प्रेजेंट थे, उसमें सब लोग थे, दुर्योधन भी था उसमें। ठीक है, दुर्योधन भी था, शिशुपाल था, और बहुत सारे उसमें, सभी सभी लर्नड, लिखा हुआ ना, ऑल द लर्नड ऑर्डर्स एंड रॉयल पीपल, ऑल एवरीवन वाज देयर, राइट। तो अब इसमें कृष्णा को भी इनविटेशन आया। तो अब कृष्णा पूछ रहे हैं उद्धव से। उद्धव कृष्णा के वो थे, क्या बोलते हैं, कंसल्टेंट। कैन यू इमेजिन? कृष्णा, जो कि खुद सबके कंसल्टेंट हैं, सबके गाइड हैं, सबके पिता परमेश्वर हैं, उन्होंने कंसल्टेंट रखा हुआ है। ऐसे वो बिविल्डर करते हैं हम जैसे लोगों को नहीं, एक्चुअली ऐसे वो बिविल्डर करते हैं जो ज्ञान योगा में होते हैं लोग। कल श्री राम प्रभु भी यही बोल रहे थे ना, कि जो ज्ञान योगा के पाथ पे चलते हैं ना, वो सिर्फ नॉलेज बाय नॉलेज भगवान को समझना चाहते हैं ज्ञान से, वो फिर बहुत सारे पॉइंट्स पे आके वो फंस जाते हैं। अब उद्धव से वो कंसल्ट कर रहे हैं, तो ये किसी को बात डाइजेस्ट होगी ही नहीं, इसलिए वो बीच बीच में ऐसे करते हैं कि मेरे पास सिर्फ भक्ति से भक्ति से तुम आ सकते हो, भक्त्या माम अभी जानाति। भगवत गीता में बोलते हैं ना, भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। तो फिर एनी हाउ उन्होंने उद्धव से पूछा कि मैं वहां पर जाऊं राजसूय यज्ञ में, कि पहले मैं जरासंध का वध करूं। तो उन्होंने, फिर उद्धव ने एडवाइस दी
कि देखो, राजसूय यज्ञ का मतलब ही यही है कि जब तुमने सारा, कोई तुम्हारा एनिमी रहा ही नहीं, तो अभी तो जरासंध है, तो यू बेटर गो एंड किल जरासंध फर्स्ट। तो अब जरासंध तो बोल रहा था कि तब मेरे को कृष्णा से लड़ना ही नहीं है, ये तो रणछोड़ है, ये भाग जाता है, ये ऐसे तो मेरे लेवल का ही नहीं है। तो फिर वो लेके गए उनको, ये सबको पता है स्टोरी है ना। भीम को और युधिष्ठिर आई थिंक गए थे साथ में, तो भीम के साथ फिर उनका मल्ल युद्ध हुआ था, और उन्होंने फिर जरासंध को मार दिया था, ये स्टोरी हम सबको पता है, राइट। तो और वो भी उन्होंने एक्चुअली कृष्णा ने ही एडवाइस किया था, वो जरासंध क्या था, वो दो बॉडीज से मिलके बना हुआ था। तो वो कृष्णा ने भीम को बोला कि इसको बीच में से ऐसे फाड़ो, तो उसने बीच में से मलयुद्ध में उसको फाड़ के फेंका, बट वो फिर से जुड़ जाता था। फिर कृष्णा ने क्या लिया, एक टहनी ली, उस टहनी को ऐसे उसको इशारा करके बोला कि इसको ऐसे करके फेंको, उल्टा करके। तो फिर उसने उल्टा करके फेंका, तो फिर वो जुड़ा नहीं वापस। एनी हाउ, तो फिर वो हुआ, तो उसके बाद फिर वो आ, राजसूय यज्ञ में आए, राइट। और वहां पर आके मिस्टर शिशुपाल उनकी वेट कर रहे थे, वो हम सबको पता है, क्योंकि सब लोग यूनानिमसली, एवरीवन सेड के अग्र पूजा, अग्र पूजा किसकी होगी, सबसे पहले जो पूजा होगी वो किसकी होगी। सबने सबसे कंसल्ट किया गया, भीष्म पितामह, एवरीवन एग्रीड के श्री कृष्ण की अग्र पूजा होगी। और भीष्म पितामह ने तो उनके उनकी ग्लोरिफिकेशन में पूरी कैंटो 10 पढ़ दिया, उनके बचपन के पास टाइम से लेके उनके गोपियों तक का सब कुछ उन्होंने ब्रीफ में ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। एवरीवन स्टार्टेड ग्लोरीफाइंग कृष्णा। पर उस टाइम पे शिशुपाल था, उसको गुस्सा आ जा रहा था कि कैसा है, क्योंकि शिशुपाल जो था, वो जब पैदा हुआ तो उसकी 3 आंखें थी, ही वॉज अ मॉन्स्टर, मॉन्स्टर जैसा पैदा हुआ था वो। 3 आंखें थी उसकी, और उसके 4 हाथ थे, और आई थिंक 4 पैर भी थे। तो उसके बाद उसकी माँ ने बोला उसको कि ये कैसा मॉन्स्टर टाइप दिखने वाला, इतना भयानक दिखने वाला पैदा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ये ठीक हो जाएगा, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाएगा जब ये किसी महापुरुष के इसको टच करेंगे, पर वही व्यक्ति इनका इनका वध भी करेगा। तो फिर कृष्णा ने उनको जब उठाया, तो इमीडिएटली वो जो मॉन्स्टर वाली 3 आंखें थी, वो सिर्फ 2 आंखों में और 2 हाथ पैर, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन गया वो। पर साथ ही वो, उनको था कि अब ये इनको मारेगा। तो उनकी माँ ने कहा कि प्लीज इसको मारना मत। तो फिर कृष्णा ने बोला कि ये 100 गलतियां भी करेगा ना, तो तब भी नहीं मैं इसको मारूंगा, मतलब 100वीं मिस्टेक पे इसको मारूंगा, उससे पहले नहीं मारूंगा। तो हर बार वो 99 मिस्टेक्स करता था या 98 करता था। बट उस दिन इतनी ज्यादा ग्लोरिफिकेशन हो गई ये राजसूय यज्ञ में, कि वो इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि उससे कंट्रोल ही नहीं हुआ, उसकी काउंटिंग भूल गई। काउंटिंग भूल गया वो गुस्से में। हम भी जैसे गुस्से में भूल जाते हैं ना, हम क्या बोल रहे हैं किसी को, बाद में पता भी नहीं होता, हमें याद भी नहीं होता, अच्छा मैंने ये बोला था तेरे को। तो वो गुस्से में इतना उसने किया कि देन वो 100 पार कर गया, और कृष्णा ने उसको फर्स्ट लेजर लेजर सर्जरी हुई उस टाइम, एक भी बूंद नहीं गिरा, क्योंकि अगर वो बूंद गिर जाता तो वो सारा यज्ञ वो विध्वंस हो जाता, तो वो भी नहीं हुआ। तो दिस इज व्हाट हैपेंड। तो भीष्म पितामह कंटिन्यूअसली देखो, ऐसे लोगों में रहकर, इतने क्रुकेड, इतना पॉलिटिक, इतने राजसिक लोग थे वहां पे, फुल ऑफ मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस, but still he remembered each and every pastime of Krishna, and he glorified Krishna during Rajsuya Yagya. Isn't it amazing? तो हमें भी, चाहे हम हमारी जैसे 9 बजे शुरू हो जाता है मोड ऑफ पैशन, फिर भी हमें बीच बीच में ऐसी डोजेस लेनी चाहिए, जैसे आप सब ले रहे हो, जैसे हम सब कर रहे हैं। इतने बिजी स्केड्यूल में अगर आप किसी को बताओ कि आप मंडे और थर्सडे ये काम करते हो, लोग कहेंगे यार हैट्स ऑफ टू यू। इतने बिजी स्केड्यूल में से 7 से 8, 7 से 7:30, जो भी है टाइम निकालना, इट्स नॉट इजी, हर कोई ये नहीं कर सकता। तभी बोलते हैं कि भागवतम का एक्सेस सबको नहीं है। ये जो हम कर रहे हैं, ये
बहुत बड़ी कोई पायस एक्टिविटीज हमने की होंगी, इसीलिए हम ये कर पा रहे हैं। हर कोई नहीं कर पाता ये। तो ये करने का फायदा क्या है कि जब एंड टाइम आएगा, जैसे भीष्म पितामह का एंड टाइम आया है, आई रिमेम्बर्ड दैट इंसिडेंट। तब हमें ये जो हमने पढ़ा होगा ऐसी चीजें, हमें अगर जिंदगी भर किया ही यही है, सिर्फ अपनी रोटी ही कमाई है सिर्फ, तो वही एंड में भी रोटी याद आएगी, इजंट इट? तो अगर बीच बीच में थोड़े थोड़े ऐसा कुछ कुछ किया होगा, तो देर इज हाई लाइकलीहुड कि ऐसा कुछ हमें भागवतम पढ़ी होगी, तो वो वाले इंसिडेंट्स कुछ ना कुछ हमें आ जाएंगे। जैसे अभी भीष्म पितामह को आ रहे हैं, जिन्होंने पूरा राजसूय यज्ञ में उनको पूरा 10th कैंटो पढ़ दिया जिन्होंने, उनको अब वो मरते टाइम पे वो थोड़ा सा इंसिडेंट याद आ रहा है। हम्म। तो ऐसे अपने बिजी स्केड्यूल में से वी शुड ऑलवेज टेक आउट टाइम, चाहे आधा घंटा 15 मिनट कितना भी हो, वी शुड ऑलवेज टेक इट आउट। अभी मेरे भक्ति परीक्षा में एक प्रभु लेट आए, तो मैंने कहा प्रभु, मेरे को थोड़ा लगा कि यार लेट आया क्या है ये, तो इमिडिएटली आई मतलब ह्यूमन नेचर है ना, जज करने लग जाते हैं। तो मैंने बाद में बोला, मैं कहा प्रभु आप लेट आए? कहता प्रभु मेरी मीटिंग थी मलग्रेव। तो मलग्रेव से पॉइंट कुक आए हैं वो। कहता मैं डायरेक्टली टोल लेता हुआ आया हूं मैं, कि मेरी मिस ना हो जाए, एंड आई डायरेक्टली केम इन हियर। आई सेड प्रभु दंडवत प्रणाम टू यू। मतलब लोगों की, यू डोंट नो देयर सिचुएशन राइट, कि वो कितना स्ट्रेच करके आ रहे हैं। बट वी जस्ट सिंपली, हम अपना जजमेंट करके कि यार देखो हम तो भागवतम पढ़ते हैं, हम तो कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम भी करो। इट्स नॉट दैट इजी, नॉट दैट इजी। तो जितना भी कोई कर रहा है, वी शुड अप्रिशिएट दैट, राइट? तो अभी नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या हो रहा है कि अब भीष्म पितामह को इतना अच्छा क्यों लग रहा है ये इंसिडेंट? व्हाई ही, ये क्यों लिखा है उन्होंने कि आई रिमेम्बर्ड द इंसिडेंट इन ऑर्डर टू कीप माई माइंड अपॉन द लॉर्ड। उनको ये क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि इस इंसिडेंट में कृष्णा वॉज ग्लोरिफाइड। कृष्णा बिकेम द अग्र अग्र पूजा हुई उनकी, सबसे पहले उनकी पूजा हुई। इसीलिए ये इंसिडेंट याद आया। भक्त को भक्त को सबसे अच्छा तब लगता है जब भगवान को रिस्पेक्ट मिलती है, जब भगवान का मान बढ़ता है। ठीक है? और हमें कब अच्छा लगता है? जब जब हमें रिस्पेक्ट मिलती है। है ना? जब हमें अवार्ड मिलता है, हम ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे हंस के फिर फोटो खिंचवाते हैं और बोलते हैं चलो फोटो खींचो, अवार्ड मिलते हुए की। तो हमें अपनी मेमोरीज वो वाली अच्छी लगती हैं जिसमें हमें रिस्पेक्ट मिल रही हो। हम्म, और इसमें भगवान तो पीछे बैकग्राउंड में, हम आगे। तो जो फोर फ्रंट की सर्विसेज हैं, और जो फ्रंट एंड की सर्विसेज हैं, वो हमें अच्छी लगती हैं। पर डिवोटीज को वो अच्छी लगती हैं जब भगवान ग्लोरीफाई होता है। प्रभुपाद इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल है। कोई भी, मेरे को बहुत देर बाद पता चला था इस्कॉन के फाउंडर हैं ये प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद केप्ट हिमसेल्फ इन द बैकग्राउंड। यहाँ पर क्या है, बाकी जितने भी आप ले लो, जितने भी आप उठा लो, वो फेस होता है, उन्हीं का ही फेस होता है। हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा। यू नो एवरीवन राइट, के गुरु पहले आता है, भगवान बाद में आता है। गुरु का फेस पहले आता है। यहाँ पर प्रभुपाद ने क्या रखा, इस्कॉन पहले रखा, कृष्णा को पहले रखा। प्रभु, मैं जब एंटर भी करता था प्रभुपाद को, ऐसे मैं सिर्फ नोट कर देता हूँ, ओके हेलो। कृष्णा को वो करते थे, बट लेटर ऑन जब लीला अमृत पढ़ी तब पता चला हु इज प्रभुपाद। तो ये होती है भक्त की क्वालिटी, के खुद को पीछे रखना और भगवान को ग्लोरीफाई करना। तो भक्त भगवान भगवान से आ सकता है, और भगवान भगवान क्या करते हैं इन टर्न, वो भक्त को मान देते हैं। अगर आपकी प्रेज हो रही है और आप खुश हो रहे हो, तो आप क्या हो, अ, उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हैं कई बार तो ना, और परपोर्ट्स में प्रभुपाद के, यू आर लाइक अ स्टूल, तुम स्टूल के पीछे, प्रेस के पीछे भागना इज जस्ट लाइक कि तुम स्टूल के पीछे भाग रहे हो।
पोटी खाने जैसा है, प्रेज को पाना, प्रेज के पीछे भागना। इतने हैवी वर्ड यूज हुए हैं भागवतम। तो हमें अपनी प्रेज से खुश नहीं होना है, हमें अपनी निंदा से खुश होना है कि हाँ अच्छा है मेरी निंदा करी। और बहुत सारे हमारे आचार्य भी आचार्य ने ये शो किया, अपनी एग्जाम्पल सेट की है। मैं नाम भूल गया, आई थिंक रूप गोस्वामी या रघुनाथ गोस्वामी के घर के बाहर कोई वाइन और मीट रख गया कि इसकी लोग देखेंगे और इसकी वो करेंगे, इसको इसकी निंदा करेंगे। और लोगों ने तो क्या देखना था, सुबह उठे उन्होंने देखा तो उन्होंने खुद लोगों को बुलाया, कहते आओ आओ देखो देखो, ये मैं मेरे घर के बाहर ये वाइन पड़ी है और मीट पड़ा है, ये मैं खाता हूँ, ये मैं पीता हूँ। ये अपने आप को पीछे रखना है, अपने आप को हम्बल करना है। खासकर जो फ्रंट एंड सर्विसेज कर रहे हैं, दीज आर वेरी वेरी डेंजरस। तो हमें वी शुड बी वेरी वेरी हम्बल, वेरी वेरी केयरफुल। हमें पता नहीं चलता कब प्राइड हमारा सर पे चढ़ जाए। हम्म? भीष्म ऐसे ही बोल रहे हैं, भीष्म क्या कर रहे हैं इतने, ही इज वन ऑफ द महाजना एंड व्हाट ही इज सेइंग कि मैं तो आतताई हूँ, मैं सबसे बड़ा आतताई हूँ, मैंने कृष्णा को मारने के लिए गया, मैंने कृष्णा पे ये किया। दिस इज व्हाट ही इज थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ। ऑलराइट। तो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ। हाँ, दूसरा इसमें क्या बोल रहे हैं कि राजसूय यज्ञ, इसमें बहुत एक अच्छी है, एक और स्टोरी। हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं इस पे, राजसूय यज्ञ। इट्स नॉट अ इजी थिंग टू डू। और उस टाइम पर इतना धन था नहीं, तो तभी धन धन को लाने के लिए अर्जुन को भेजा गया, तभी उनका नाम पड़ा धनंजय। वन ऑफ द नेम फॉर अर्जुना इज धनंजय। तो उन्होंने कहा कि धन कहाँ से इकट्ठा करें, तो ऐसे वो गए, तो उनको मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, कोई करेक्ट, समवन कैन करेक्ट मी इफ दे रिमेम्बर। उनको किसी ने गाइड किया कि आप ऐसा करो, एक वहां पर सोने का पहाड़ है, वहां से जाके ले लो सोना। तो जब वो वहां पर गए, तो वहां पर सोने की प्लेट्स पड़ी हुई थी, बहुत सारी। इतनी प्लेट्स पड़ी थी कि उसका पहाड़ बन गया था। तो अर्जुन ने पूछा कि ये क्या है, ये सोने की प्लेट्स यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि ये जब राजा महाराजा ब्राह्मणों को ब्रह्म भोज पे बुलाते थे, तो उस टाइम पे वो सोने की थालियों में उनको खाना सर्व करते थे। तो वो खाना खाते थे और उसके बाद प्लेट बच जाती थी, वो प्लेट फेंक देते थे। तो ये ब्राह्मणों का था। लुक एट द नेचर ऑफ ब्राह्मणा एज वेल एज क्षत्रियाज एट दैट टाइम। क्षत्रिया वर लाइक सो मच चैरिटी, वही नेक्स्ट पॉइंट उसी पे ही आ रहा है। हाँ, ब्राह्मण एंड क्षत्रिय were the topmost leading men in the society. Why they were topmost leading? Because if you see कि कैसे वो दे रहे थे, सोने की थालियों में, हम यहाँ डिस्पोजेबल में देते हैं, वहाँ सोने की थालियों में सर्व हो रहा है। और हम डिस्पोजेबल भी कई बार बोलते हैं यार धो के रख लेते हैं, इसको वापस यूज हो जाएगा, थोड़ी सी सब्जी लगी है इस पे। वहां पे वो सोने की थाली को फेंक रहे हैं ब्राह्मण। दिस इज द लेवल ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम द ब्राह्मणा साइड एज वेल एज फ्रॉम द क्षत्रिय साइड, के सोने की थाली तो बंदा अपने पास रखता है ना, खाना खिला दिया ठीक है, वो थाली भी दे रहे थे कि ले जाओ, और वो रख नहीं रहे थे। तो आज की डेट में आज की डेट में क्या है, वो क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ उसमें उस असेंबली में सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय आए थे। अब आप बोलोगे दिस इज रेसिज्म, दिस इज नॉट गुड, व्हाई नॉट वैश्यास एंड शूद्रास, दीज वर रेसिस्ट पीपल। नो, दिस वाज नॉट द केस, बिकॉज उस टाइम पे देवर अनइम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। अभी बोलते हैं प्रभुपाद, बोलते हैं प्रभुपाद क्या, प्रभुपाद ने भी बोला है वैसे, बट अगर आप हम पहले, चलो मैं ये बताता हूँ कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, आज की डेट में देर आर नो ब्राह्मणा इन कलयुग, एज वेल एज देर आर नो क्षत्रिय। ब्राह्मण कौन होते हैं, ब्राह्मण की ड्यूटी क्या होती है, पठन पाठन यजन याजन। वो खुद शास्त्र पढ़ते हैं, फिर वो पढ़ाते हैं, और वो खुद यज्ञ यज्ञ करते हैं। वो सब कौन करता है आजकल, कोई नहीं करता, ब्राह्मण है ही नहीं कोई। वो पहले रेट रेट पहले आता है, अच्छा ये करवाना है तो इसका रेट ये है, इस ये पैकेज लेना है, शादी आपको 4 घंटे में करानी है, 2 घंटे में करानी है, उसका पैकेज अलग है।
तो वो पहले से रेट डिफाइंड है। तो सो दीज आर नॉट ब्राह्मणास। ब्राह्मणा पहले चैरिटी पे रहते थे, जितनी चैरिटी मिल गई ठीक है। और क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या होते थे? राजा। आज की डेट में कोई राजा है नहीं। राजा मतलब राजा भी होते थे और उनके आगे जो क्षत्रिय जो प्रोटेक्ट करते थे ब्राह्मणों को। आजकल कौन करता है ब्राह्मणों को प्रोटेक्ट? इसीलिए वो ब्राह्मण खत्म हो गए। प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी फाइनेंशियल हेल्प एज वेल, कि वो दान करते थे। अब जब दान देना बंद ही हो गया तो फिर ब्राह्मणों को पैकेज बनाने पड़े अपने भी, क्योंकि दान ही नहीं आ रहा था। हम कितना दान करते हैं? जीरो। क्या? तो वो होते थे क्षत्रिय। आजकल की सोसाइटी में सिर्फ रह गए हैं वैश्यास और शूद्रास। शूद्रास क्या करते हैं? वैश्यास तो हम सबको पता है, जिनका अपना बिजनेस है, ठीक है। और शूद्रास क्या होते हैं? जो सर्विस करते हैं किसी और के लिए। हम क्या हैं? अगर वी आर एन एम्प्लॉयज है ना, आईटी कंपनी में काम करते हैं, काम किया किसी के लिए, वहां से सैलरी मिल गई, तो वी आर शूद्रास। और वैश्यास अगर कहीं किसी का अपना बिजनेस है तो वो वैश्यास हैं। एंड बोलते हैं कि शूद्रास को अगर पैसा मिलता है ना, तो वो किस पे लगाते हैं? वाइन एंड विमेन पे। को पता ही नहीं है कि पैसा कहाँ पे लगाना चाहिए। इसीलिए दीज वर वेरी अनइम्पोर्टेंट पीपल, वेयर एज क्षत्रिय और ब्राह्मणों को पता था। ब्राह्मण को तो पैसा चाहिए नहीं होता था, ठीक है। और क्षत्रियों को पता था कि कैसे इस पैसे को यूज करना है, ब्राह्मणों की रक्षा करनी है। और या इनफैक्ट सभी सभी वर्णों की रक्षा करनी है, राइट। तो हाँ, तो वहां पर सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, और सभी लर्न सोसाइटी इंक्लूडिंग ग्रेट फिलोसोफर, रिलीजियनिस्ट, फिजिशियन, साइंटिस्ट, ऑल ग्रेट सेजेस वर इनवाइटेड। ऑलराइट। तो अब चलते हैं थर्ड पैराग्राफ में। अब वो क्या है? लॉर्ड कृष्णा वॉज द साइनोशोर ऑफ द नेबरिंग आईज। अब युधिष्ठिर ने ये यज्ञ क्यों किया? ये बताने के लिए नहीं कि मैं सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हूँ। नो, ही वांटेड एवरीवन टू नो कि लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। जिससे अग्र पूजा किसकी होती है? जो टॉप मोस्ट है उस असेंबली में। जैसे सब लिखा है ना, ग्रेट फिलोसोफर, सब बड़े बड़े सेजेस वहां पर। शिव जी थे वहां पर, ब्रह्मा जी थे, नारद मुनि, व्यास देव, एवरीवन वाज देयर इन दैट असेंबली। इन फ्रंट ऑफ शिव जी एंड ब्रह्मा जी, कृष्णा को अग्र पूजा के लिए चुना गया। व्हाट इट शोज? दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, राइट। सोचो, एक 16 साल का लड़का, उसको तुम बोल रहे हो कि इसकी पूजा करो, जबकि वहां पे शिव जी बैठे हैं। कैसा लगेगा? वहां वहां पे बैठे हुए लोगों को कैसा लगेगा कि ये लड़का, ये ग्वाला, ये बनेगा? नो, बिकॉज ही वॉज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। टू प्रूव दैट, ये प्रूव कर, आज हम वो करते हैं ना भक्ति वृक्षा में, डज गॉड एग्जिस्ट। आज की डेट में हम हमें ये भी नहीं पता कि भगवान एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। सुप्रीम गॉड की तो बहुत दूर की बात है। वो तो हमें हमें भी नहीं पता था। जब मैं भी आया मुझे भी नहीं पता था कि कृष्णा वॉज सुप्रीम। हम सबको ये लगता है 10 अवतार होते हैं विष्णु के, उसमें से एक अवतार है कृष्णा। दैट्स रॉन्ग। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हमने फर्स्ट कैंटो में ही पढ़ा है। कृष्णा इज द भगवान हिमसेल्फ, राइट। तो उस भगवान के रूप पे दिस भीष्म देव इज मेडिटेटिंग। एंड अब ना, इसमें जो लास्ट टॉपिक आ रहा है विच इज, so to meditate on the Supreme Lord is to meditate on the activities, form, नाम रूप गुण लीला। इट इज इजी ना, इजी है ना ये, इस पे इन चीजों पे मेडिटेट करना। अब देखो, भीष्म पितामह ने इन पे हर एक एस्पेक्ट पे मेडिटेट कर करके उन्होंने बताया है, राइट। कि मैं पहले पार्थ सारथी के रूप पे मेडिटेट कर रहा था, मैं इस पे मेडिटेट कर रहा था, अब मैं राजसूय यज्ञ में जो पास टाइम हुआ वो क्या कर रहे हैं? भीष्म पितामह इस टाइम पे पास टाइम्स पे मेडिटेट कर रहे हैं। कितना इजी है, इजंट इट? रादर देन वो इम्पर्सनल फीचर पे मेडिटेट करें कि हाँ एक ज्योति है, मैं ज्योति पे मेडिटेट करता हूँ।
ध्यान कहीं और ही चला जाएगा। कितना इजी है इस पे मेडिटेट करना। और भगवत गीता 12.5 में क्या बोला है? लेट्स सी। For those whose mind are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement is very, very troublesome. कौन बोल रहा है ये? कृष्णा खुद बोल रहे हैं भगवत गीता में। To make the progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. हम क्या हैं? embodied हैं, बॉडी के अंदर हैं। एज अ रिजल्ट हमारे लिए इम्पर्सनल फीचर पे मेडिटेट करना और उसमें एडवांस करना इज वेरी वेरी ट्रबलसम, इट्स नॉट इजी। ठीक है ना? मैं परपोर्ट में नहीं जाऊंगा, इसको आप पढ़ सकते हो अपने टाइम में, बट दिस विल गो इन डिटेल के कैसे क्यों मुश्किल है। सबसे पहले तो इट्स इजी, राइट? भक्ति आप घर में बैठकर कर सकते हो। वेयर एज ध्यान योगा या ज्ञान योगा का फर्स्ट स्टेप क्या है? लीव हाउस एंड गो टू जंगल, गो टू द फॉरेस्ट, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ अस, राइट? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जो हमें यहाँ पर इस्कॉन में जो ये चीज मिली है ना, हमें कहीं नहीं मिलेगी। और जितना दिव्य ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है, जितना ये फोकस किया जाता है यहाँ पर नॉलेज के ऊपर, उतना कहीं पर भी नहीं है। नोवेयर। सब लोग बस कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। सब कंफ्यूज घूम रहे हैं, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आई डोंट वांट टू नेम देम बट आई नो लॉट ऑफ पीपल। मैंने उनसे पूछा कि हाँ जी आप क्या करते हो? हाँ बस वहां जाते हैं, वहां पर भजन लगे होते हैं। अच्छा, तो भजन लगे होते हैं तो उसके बाद क्या करते हो? वहां पर सेवा करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद लोग अपनी अपनी रियलाइजेशंस बोलते हैं। मैं किसके बेस पर? कोई कोई बेसिस है? भगवत गीता पढ़ते हो? क्या करते हो? नहीं बस ऐसे ही है जी, हम बस सेवा करते हैं, सेवा में बहुत मजा आता है करने में। घर में जाए वो वाइफ की हेल्प करवाए ना करवाए, वहां जाकर सेवा जरूर करनी है उनको। और क्यों करनी है कोई आइडिया नहीं है। नो आइडिया एट ऑल। बस जी कर रहे हैं, कहीं लगे हुए हैं। इसलिए नॉलेज एक्शन करना इज गुड, राइट? इट आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड एट वन इट, बट इट इज एट वन लेवल। वी हैव टू गो बियॉन्ड। और जब तक हम नॉलेज में एक्शन नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, और वो सस्टेनेबल भी नहीं रहेगा। व्हेन वी आर डूइंग एक्शन इन नॉलेज, तब वो सस्टेनेबल रहेगा, हमें पता होगा कि हम क्यों कर रहे हैं वो, राइट? तो नहीं तो वो क्या बोलते हैं, निराकार तुम्हार चरण देखी। अब निराकार को बोल रहे हैं कि आपके चरण देखे हैं हमने। निराकार के चरण कैसे देख सकते हो आप, जिसका आकार ही नहीं है? कितना डिस्कनेक्टेड है एक निराकार, निराकारवादी होना, इजंट इट? तो डिवोटी क्या करते हैं? मेडिटेट ऑन द फैक्चुअल फॉर्म एंड पास टाइम्स, देयरफॉर इजीली अप्रोचेबल। भक्ति इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, राइट? वेरी वेरी सिंपल। भगवत गीता में 12.19 एक और वर्स देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? माई डियर अर्जुना, ओ विनर ऑफ वेल्थ। धनंजय है ना, धनंजय होगा यहाँ लिखा, विनर ऑफ वेल्थ। ठीक है कहीं? हाँ धनंजय लिखा हुआ है ना, धनंजय। O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulative principles of Bhakti Yoga. In this way, develop a desire to attain me. अब अर्जुन बोल रहा था कि अर्जुन जो कि विंड को कंट्रोल कर सकता था, विंड की डायरेक्शन को कंट्रोल कर लेता था। वो इधर जा रही है तो वो बोलता था इधर चल, तो विंड उधर चलने लग जाती थी। दिस इज हिज पावर। और वो बोल रहा था कि मैं विंड को तो कंट्रोल कर सकता हूँ कृष्णा, पर मैं अपने माइंड को नहीं कंट्रोल कर सकता। तो कृष्णा उसको क्या बोल रहे हैं कि अगर तू माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझ पे नहीं लगा सकता, तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा। भक्ति योगा के दो दो तरह की भक्ति योगा है। कौन कौन सी है पता है हमें? ऑन अ हाई लेवल, वैदी साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदी साधना भक्ति मीन्स रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके जो हम करते हैं, जो कि हम कर रहे हैं इस टाइम पे। अच्छा हाँ, सुबह ये उठना है,
स्नान करना है, चैंटिंग करनी है, वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, भोग लगाना है, ऑफरिंग से पहले हमें खुद से नहीं खाना, पहले कृष्णा को खिलाना है फिर खाना है। ठीक है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं विच वी आर फॉलोइंग। तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं, अगर तुम रागानुगा नहीं कर सकते हो, और रागानुगा क्या होती है कि आप स्पॉन्टेनियस भक्ति कर रहे हो, यू आर ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा। अभी हम कैसे भोग लगाते हैं, हमने खाना है, हम यहाँ टाइम देखते हैं, अच्छा चलो अब टाइम हो गया है, अब हम भोग लगा देते हैं। यहाँ यहाँ जब हमें भूख लगी है तब भोग लगा देते हैं। रागानुगा में क्या होता है कि वो स्पॉन्टेनियस भक्ति चलती है, हम कृष्णा को सेंटर में रखते हैं कि कृष्णा कृष्णा सो रहे हैं। और वो सब चीजें अभी आई रियलाइज इन लास्ट वन वन टू डेज। कल हमारे घर पे वो आए हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आए थे, उनके डीटीज और रथ यात्रा। तो जब वो आए तो रात को बच्चे शोर मचा रहे थे, तो आई वाज टेलिंग देम वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं। वो अंदर से ही वो अपने आप से आ रही थी वो चीजें। सुबह उठ के भी मुझे टेंशन थी कि हाँ मतलब पहले बच्चों को उठाएं तो बच्चे शोर करने लग जाएंगे, तो साइमल्टेनियसली उठाते हैं उनको, राइट। तो ये कोई ऐसा स्विच बोर्ड स्विच नहीं है कि ऑन ऑफ किया तो आज रागन होगा हो गए और आज वैदी है। तो इट इज अ ग्रेजुअल, इट्स अ स्पेक्ट्रम है ना, तो इट्स अ ग्रेजुअल इंक्रीज टुवर्ड्स दैट, बट इनिशियली वी हैव टू फॉलो वैदिक साधना भक्ति। पहले हमें उनकी ऑ एंड रेवरेंस पता होनी चाहिए, तभी भक्ति हो पाएगी। नहीं तो हम इधर उधर चले जाएंगे, सहजिया बन जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक 7:40 हो गए हैं। तो आई विल स्टॉप हियर एंड आई जस्ट टेल द की जो आज के की पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। एक तो कि हमें कृष्णा को ग्लोरीफाई करना चाहिए, कृष्णा कृष्ण कथा करनी चाहिए, कुछ भी भक्ति रिलेटेड एक्टिविटी हमें डेली एक आधी करनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम चैंटिंग। चैंटिंग तो हम कर ही रहे हैं, चैंटिंग के बाद भी हमें चाहे 15 मिनट आधा घंटा कुछ भी, चाहे लिसनिंग कर लें, हमारी अपनी बिजी लाइफ के बीच में से हमें वो निकालना चाहिए। नाम रूप गुण लीला कुछ पास टाइम हमें जरूर सुनना चाहिए, ताकि एंड टाइम में वो हमें हेल्प करे, जैसे भीष्म पितामह को हेल्प किया। और दूसरा, अपने आप को फ्रंट एंड पे नहीं लाना, कृष्णा को फ्रंट एंड पे लाना है। हम क्या कर देते हैं, देखो ये मैंने किया, ये मैंने किया, जो कि भीष्म पितामह ने अगेन हमें सिखाया कृष्णा को ग्लोरीफाई करके। और कृष्णा भी ने भी क्या किया, कृष्णा ऑल्दो ही वॉज द अग्र, सबसे पहले उनकी पूजा हुई, ही वॉज द टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी, और उन्होंने कौन सी सर्विस ली थी, ब्राह्मणों के चरण धोने की। यस, ब्राह्मणों के चरण धोने की सेवा ली उन्होंने। दुर्योधन ने कौन सी ली थी? दुर्योधन ने ली थी, जो गेस्ट्स आएंगे, वो जो गिफ्ट्स लेके आएंगे वो रिसीव करने की। ये सर्विस दुर्योधन ने ली थी कि मुझे मुझे गिफ्ट्स मिले, मतलब वो गिफ्ट्स इकट्ठे करके रखने की। ठीक है, तो ये हमारे जो हम सर्विस लेते हैं वो थोड़ा थोड़ा हमारा उसमें कैरेक्टर दिखता है, राइट। तो कृष्णा ने सबसे हम्बल सर्विस ली, ब्राह्मणों के चरण धोने की, राइट। तो कृष्णा अपनी ही इज लीडिंग बाय एग्जाम्पल, कि अपने आप को फ्रंट एंड पे नहीं रखना। तो और कृष्णा लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें क्या बताया गया है कि कृष्णा जो है वो पर्सनल है। भक्ति योगा इज द इजीएस्ट मार्ग एज कंपेयर टू ध्यान योगा या ज्ञान योगा। ठीक है ना, इम्पर्सनल पाथ बहुत डिफिकल्ट है, जो कि 12.5 में बताया गया है। और 12.9 भगवत गीता में बताया है कि भक्ति क्या बताया 12.9 में, मैं खुद भूल गया। आई लॉस्ट माई ट्रैक। हाँ, कि रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, कि वी शुड फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, से कर करके विल विल कम टू अ स्टेज जहां पर हम रागानुगा भक्ति कर पाएंगे, राइट। तो एनी पॉइंट्स, आज मैं ही बोलता गया, आज मैंने किसी और को बोलने का मौका नहीं दिया। एनी पॉइंट्स, कमेंट? सही है, आई विल गिव यू 15 मिनट्स बैक। ठीक है, चलो, ठीक है जन। हरे कृष्णा। एनीवन हरे वांट? कृष्णा प्रॉपर्टी। हरे बस कृष्णा। एक 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 क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। अ, आप ट्वेल्थ चैप्टर पढ़ रहे हो,
हाँ जी। तो ये जो आप स्क्रीन पे शेयर करते हो, हाँ ये जी। भगवत गीता में से है या ये कोई और बुक है जहाँ से हाँ एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते हो? हाँ हाँ, ये माता जी ये है, वेबसाइट का नाम है वेदाबेस.io। इसमें हम अभी क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कैंटो भागवतम, श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो के हम्म। 9th चैप्टर का 41st वर्स कर रहे हैं हम। अब इसके अंदर क्या है, दो रेफरेंसेस दिए हुए हैं भगवत गीता के, हम्म। 12.5 वर्स और 12.9। जो मैंने यहाँ पर खोले थे, ये 12.5 है और ये हाँ 12.9 जी। है, ये भगवत गीता है। तो भगवत गीता क्या है, जो भगवान ने खुद से बोली है जी। अर्जुन को कुरुक्षेत्र हाँ में। जी। और भागवतम है जो डिवोटीज के बीच में वार्तालाप है, कन्वर्सेशन बिटवीन द डिवोटीज। तो एक है श्रुति और एक है स्मृति। भगवत गीता क्या है, श्रुति डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ कृष्णा। एंड स्मृति क्या है, कृष्णा के लिए, कृष्णा की ग्लोरिफिकेशन में दो डिवोटीज ने बात की है, जो दैट इज श्रीमद् भागवतम। तो हम भागवतम में भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं, वो अपना, और इस केस में अभी एट एट दिस पॉइंट कृष्णा खुद भी है वहां पर, जब ये भीष्म पितामह उनकी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं एट दिस पॉइंट। तो जनरली क्या है कि कृष्णा जा चुके हैं और उसके बाद भक्त जो हैं वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। और अभी ये अभी नहीं, अभी तो नहीं आया, हाँ ठीक है। इज दैट, डज दैट आंसर माता जी? हाँ जी। आप ये वाला लिंक ग्रुप में एक बार ही भेज देंगे, हाँ, मैं ये ग्रुप है ना? में तो भेज देता थोड़ा हूँ। थोड़ा मैं पढ़ूंगी, क्योंकि मैं बीच में हाँ बहुत टाइम के लिए एकदम से गायब हो गई थी ना। हाँ, नहीं मैं ये भेजता हूँ आपको तो अभी। हाँ जी। हम्म। क्योंकि मतलब, तो जो भगवत गीता में जो 12th चैप्टर है हाँ वो जी। अलग चीज है, और जो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अलग चीज है। हाँ, वो श्रीमद् भागवतम है, ये श्रीमद् भागवतम है जिसमें कि 12 कैंटोज हैं। और जी। उसमें भगवत गीता तो काफी छोटी है एज कम्पेयर टू श्रीमद् भागवतम। भगवत गीता में सिर्फ 700 वर्सेज हैं। हाँ और जी। वो कृष्ण और अर्जुन की वार्तालाप है जो जी। 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 कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई थी। हाँ जी। हम्म। हाँ, मुझे थोड़ा सा ना, थोड़ा थोड़ा पता है, बट मैं बार बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि क्योंकि मैं हाँ रेगुलर नहीं रही ना, हाँ, इस नहीं वजह से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माता जी, पूछिए, यहाँ यही फोरम है, जितने मर्जी क्वेश्चन पूछिए, वी आर जी। देयर टू आप आंसर। वो शेयर कर दीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा वो भी पढ़ने की कोशिश करूंगी अपने से। और अगर कहीं पर अटक जाऊंगी या कोई हाँ क्वेश्चन होगा हाँ तो हाँ, आप फिर एनी पूछूंगी। टाइम एनी टाइम, बिल्कुल बिल्कुल। जी। हाँ जी। हाँ थैंक यू। जी। ओके जी, थैंक यू। ऑलराइट, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला जय प्रभुपाद की जय, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्ण हरे टू कृष्ण। एवरीवन, हरे कृष्ण टू एवरीवन। हरे कृष्णा।